file history, file and documents from domain, file and entity properties, and all different things. Okay. Towards your left, there are three type of footprinting machines: the L1, L2, and L3. L1 means it will enumerate in a lower basis, little bit enumeration. In L2, it will enumerate a much higher than L1 but lower than L3. L3 is the maximum level of enumeration you can perform with Maltego with community edition. Okay, we will go with L2 part, the medium level enumeration. Let's start it. Okay, इसने मुझे दो MX रिकॉर्ड्स दिए. मैं इसे कहता हूँ इनको भी इनमरेशन के लिए भेजना है मुझे. तो प्रेस नेक्स्ट, again next, enumerate name servers as well. I'm closing the outbox. Okay. So these are the relevant domains for these name servers. You can see this is one of the name server and these are the relevant domain names. If I want to enumerate these as well, let's proceed with this. Proceed with these as well. So if you can see, the blue one are the domains. All these blue dots are my domains. All the yellow one are my IPv4 addresses. Okay. All the red ones, this red one, you can see this red, this, all these are my name servers. Okay. The orange one, these orange parts are my DNS, the DNS name servers. Okay. Then we have something, the dark green, or you can say light blue. These are my net blocks. So net blocks are the non-government organization which can monitor your traffic. Okay, we call them net block. Non-government organization which can monitor your traffic. They have permissions for this part. Okay, you can see इतने सारे डोमेन नेम्स ढूंढ के दिए मुझे मार्टिको ने. ये कुछ नेम सर्वर्स ढूंढ के दिए just for the Chrome, just with the help of a domain. मैंने find किया है. Okay, so red one is the company. If I double click on any red one, let's see. No, it's a location one. Let's zoom in and let's see if I can find any company name here. Oh, it's an SP called. But yeah, these are the informations जो Baltic आपको ढूंढ के देता है, like netblocks, IPv4 addresses. You know about AS, autonomous systems. No. Okay. One query here for the net block. You said like non-government organization to monitor the traffic. So it will be particularly those for those Lenovo company only. Like it will be responsible for monitoring the all the data there. No, networks can monitor any kind of data, not only for Lenovo. Okay. So these are the networks which are monitoring Lenovo traffic as well. Okay. Okay. Yeah, networks companies can monitor any kind of data. They have permissions, but they are non-government organization as well. For private companies, but they have authorities. Okay. Okay. So autonomous systems. Yeah. So what is autonomous system? Is a collection of connected internet protocol routing prefixes under the control of one or more network operators. If I give you a simple example, let's say an image, and then I can better explain you. So yeah, in AS1 we have different networks. Suppose in your organization you have different networks for different departments, like different network for development part, different network for marketing part, different network for data centers and all. You can say it as a network for
different networks under a single autonomous system. तो हम उसको एक नाम दे सकते हैं उस एक सिस्टम को. ओके, ग्रुप ऑफ नेटवर्क को हम एक नाम देते हैं ऑटोनोमस सिस्टम के नाम से. इट इज ऑटोनोमस सिस्टम 1 2 3, या फिर अपना कोई खुद का नाम देते हैं उसको हम. ठीक है, वी कॉल इट ऑटोनोमस सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स. So this is our Maltigo. You can use or enumerate different entities from here. IP, आप IP4 को enumeration कर सकते हो. MX records, name servers, net blocks, URL, website, different things. Okay. So just because I'm using community edition, कुछ limited features आते हैं community edition के लिए, but if you are using a pro version, this tool is amazing. So it depends कि अगर कंपनी आपको pro version देती है तो बहुत अच्छा है, वरना you can use community edition version. Okay. So if you check in Kali Linux, this tool opens in this manner. When you first install this tool or open in Kali Linux, it will ask you for login and then install some transformation or the scanning results. Okay, and then you can use this community edition, or you can say any kind of version for Maltigo. All right. So any doubt from Maltigo part, you can try it yourself. अगर कोई query आती है, कोई doubt आता है, we will figure out in our next class. Okay. So I'm closing this one. Sure, sir. So let's start with our today's practical part of today's module. आपको स्कैनिंग, आपको सॉरी हैकिंग के phases याद है? So all the 5 phases of hacking. Yes, sir. So what was the first one? Footprinting. Second is scanning. Third, Yes. Gaining access. Fourth, maintaining access. Fifth one, Yes. clearing the logs. Yes. So today we will continue with our check-in part or the scanning phase. Okay. So before this, I'm giving you a PDF file. So I think I can share on the Zoom. So I'll give you a link. We'll specifically use a tool called Nmap, the network mapper, for scanning our network part. Okay. So yeah, this was the PDF. इसको होने देते हैं. Oh, let's start with our network part, where you can see network scanning phase. So I hope you know about TCP and UDP, how they are different and how they works. Yeah, I have an idea, sir. So, and Monica, Yes, yes. okay, if you both are familiar with TCP and UDP, let's skip this part so we can have more time for our practicals. Okay, Yes, sir. yeah. And about TCP flags like sync, acknowledgement, pin, urgent, push, and reset. These are the 6 flags we use. Okay, so these are the basic definitions. The RST flag for reset, push flag आपको जो पैकेट होता है उसको जो आपका टैग रहता है, फिर जो क्यू रहती है, बफर में नहीं डालता, सीधा उसको पास कर देता है आगे. अर्जेंट में और पुश में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. अर्जेंट में कोई भी काम कर रहा हो आपका राउटर, पहले उस पैकेट को प्रोसेस करेगा. पुश में वो जो काम कर रहा है पहले वो पूरा करेगा, और आपका जो पैकेट आया है फिर उसको प्रोसेस करेगा. ये नहीं उसको बफर में डाल देगा कि पहले ये पैकेट आए थे पहले इनको भेजूंगा मैं, नहीं. वो जो काम कर रहा है उसे पहले पूरा करेगा और फिर उस पैकेट को प्रोसेस करेगा. ओके, बट अर्जेंट में वो जो भी काम कर रहा होगा उसको छोड़ के उस पैकेट को प्रोसेस करेगा पहले. ठीक है. देन वी हैव आवर पिन फ्लैग. पिन फ्लैग स्पेसिफाई करता है कि हमारा
तो डाटा था वो आ चुका है पूरा पूरा, यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है फिनिश। ये काम है पिन फ्लैग का। देन वी हैव एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, जो एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं हम। देन वी हैव सिंक फ्लैग, जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है, लाइक सिंक पैकेट्स जो हम भेजते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो दिस इज अवर TCP थ्री-वे हैंडशेक। Computer send the sync, we receive, then computer 2 send sync plus acknowledgement, and computer 1 send the acknowledgement part. Okay, so this is a simple three-way handshake. Then we have our OSI model and a TCP model. So this will be your task you want. आपको अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं पता है तो एक बार को पढ़ लेना कि कौन सी देर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार ये पढ़ लेना आप इनके बारे में। ओके, then we have our practical part. So let's begin with practicals. So just give me a minute. So I'm using two different machines. The first one is my Kali Linux for attacker work, and I'm using Metasploitable, which is a vulnerable machine for my victim, or as my victim. Okay. So let's see the network. I'm using the host one because मेरी जो Metasploitable machine है वो भी host पे है. Okay. You can also use Bridge. वो आपको एक रियल लाइफ सिमुलेशन की तरह काम करेगा कि रियल लाइफ में कौन कौन सी मशीन मिलती हैं आपको, और डिफरेंट मशीन में आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी मशीन मेरी वल्नरेबल हो सकती है, वो उसमें काम, उस केस में भी काम कर सकता है आपका। बट आई एम राइट नाउ यूजिंग होस्ट ओनली। तो और इसको आईपी दे देते हैं। या आई गॉट द आईपी 2.2.128। ओके, दिस इज माय आईपी एड्रेस फॉर Kali Linux मशीन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या रहता है कि नेटवर्क में कौन कौन से, हमने नेटवर्क के एक्सेस ले लिए अभी फिलहाल के लिए, हमारे पास नेटवर्क के एक्सेस है सपोज। ओके, तो उसके बाद हमारा काम क्या रहता है, वी हैव टू इनमरेट कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है इस सेम नेटवर्क में। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स है। द फर्स्ट वन वी हैव आर्प स्कैन। आपको आर्प प्रोटोकॉल के बारे में पता होगा, आई एम श्योर यू नो अबाउट आर्प, ARP। No, sir. ओके, एंड मोनिका? I forgot it. Address something. ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर्प डू। आर्प आपके मैक एड्रेस को आपकी आईपी एड्रेस से बाइंड करता है। Yeah. ओके, इन सिंपल टर्म्स रूपरेट, ठीक है, आपके मैक एड्रेस को आपके आईपी एड्रेस से बाइंड करता है। Okay. ठीक है, So MAC address and IP address gets combined through ARP. दे आर नॉट एक्चुअली कंबाइंड, उनको लिंक करता है एक दूसरे से। लाइक इफ समवन इज Linked. सर्चिंग Okay, फॉर, okay. Okay. अगर कोई मुझे मैक एड्रेस से ढूंढ रहा है तो उस मैक एड्रेस के लिए मेरे पास एक आईपी एड्रेस होगा स्पेसिफिक, मतलब एक यूनिक आईपी एड्रेस कि ये आईपी इस मैक एड्रेस को लोकेट है। यू कांट यूज, यू का आप इसको कहीं और यूज नहीं कर सकती इस आईपी एड्रेस को। ओके, उस वो वाली चीज है यहाँ पे, दोनों को लिंक करता है, मैक एड्रेस को और आईपी एड्रेस को एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ देख लेते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा समझ में आएगा फिर आपको। मैं यहाँ पे सिंपल आर्प स्कैन चला रहा हूँ। ये कमांड करती क्या है, हमारे पूरे नेटवर्क में मेरे आर्प पैकेट्स ब्रॉडकास्ट कर देगी, और जहां से भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उसके साथ में आईपी एड्रेस तो आएगा ही, क्योंकि उन सबके पास आईपी एड्रेस तो होगा फॉर श्योर। जिस पैकेट का रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे यहाँ पे शो करेगा ये। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। Yeah, so you can see 7 packets received. Okay, and these are the addresses. I know 2.2.2.1 is my gateway, the router's gateway, and 254 is my broadcast address for VMware. Okay, hello। Yes. Sir? अगर आप लोग साथ में रिप्लाई करते रहोगे तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, मैं भी कंटिन्यू कर पाऊंगा इजीली आराम से आगे। Sure. ठीक है, या तो आई नो 2.2.2.128 is my IP address for this machine. So 1.1, sorry, 2.1 is my IP address for my gateway, and 2.54 is the IP address for broadcasting. So what's left?
2.129. One. This could be the IP address for my victim, IP address of my victim's machine. Okay, so this is the simple ARP scan command, जो कि हमारे ARP पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करती है और जहाँ से रिस्पॉन्स आता है वहां से हमें हमें बताता है कि वो मशीन अभी एक्टिव है और ये उसका मैक एड्रेस भी है. यू कैन सी तो मैक एड्रेस भी ढूंढ के दे रहा है. अगर मैक एड्रेस हमारे पता हो तो हमारी जो 3 ऑक्टेट्स होती हैं, स्टार्टिंग की है 3, जस्ट गिव मी अ सेकंड. क्या तो हमारे ये जो 3 स्टार्टिंग की ऑक्टेट्स होती हैं ये स्पेसिफाई करती है कि हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है. ओके, तो बाकी 3 होती है वो बताती है कि होस्ट कौन है हमारा. तो ये आखिरी की 3 होती है होस्ट के लिए, तो स्टार्टिंग की 3 होती है हमारी मैन्युफैक्चरर के लिए. ओके, तो यहाँ से मुझे बता रहा है कि ये VMware है. ओके, तो after this we have another command like our first objective will be scanning live host कि कौन कौन से live host अभी एक्टिव है नेटवर्क में. This is our first part. So this is the command ARP-scan जो ARP पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा. ARP प्रोटोकॉल करता क्या है, आपके मैक एड्रेस को IP एड्रेस के साथ लिंक करके रखता है. Okay, yeah. Then we have another command nmap-sn और नेटवर्क या फिर पूरी CIDR वैल्यू. So you know about CIDR, I'm sure आप लोग का पता है आपको नेटवर्किंग के बारे में. तो CIDR के बारे में पता होगा आपको. No, sir. Okay, and Monica? Yeah, sorry for the disturbance. Yeah, I'm asking, do you all know about CIDR values? No. Okay, so this will be your task. आपको एक चीज पढ़ के आनी है, सबनेटिंग. Okay. सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग. ठीक है, ये सिंपल सी 2 चीजें हैं, ज्यादा फर्क नहीं है. सॉरी, जस्ट बिकॉज मैं अभी होस्ट पे हूँ तो नेट काम नहीं करेगा मेरा. आपको लिख देता हूँ एक बार ये सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग. तो समझते हैं कि CIDR होता क्या है. सपोज मैंने लिखा है 1.1.1.1/24. अब इसे करते हैं कॉपी. एक नोटपैड खोल लेते हैं. यस, तो मेरा IP एड्रेस किस फॉर्मेट में होते हैं, 1.1.1.22 मान लेते हैं एक बार. ये मेरा IP एड्रेस है सिंपल. ठीक है, मेरे पास ऑक्टेट्स होती हैं लाइक 00000 और उसमें 8 रहते हैं, फिर डॉट आता है, फिर 8 होते हैं, फिर डॉट आता है. ये होता है मेरा IP एड्रेस का फॉर्मेट. ओके, इस बारे में तो पता होगा. Yes. तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ /24, तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब तो 24 मेरी बिट्स हैं, लाइक 8, 816 और 824. ये 24 बिट मेरी स्पेसिफाई कर रहे हैं नेटवर्क एड्रेस. और जो बची आखिरी की 8 वो बताती है मेरा होस्ट का एड्रेस. ओके, अब यहाँ पे जरूरत है कि 24 ही आएगा. आप कुछ भी दे सकते हो, 30 दे सकते हो, 27, जो आपका मन करे वो दे सकते हो. बट ये बताता क्या है, ये बताता है आपका कि कितनी बिट नेटवर्क के लिए यूज हुई है. ओके, ये पार्ट आपका सबनेटिंग और सुपरनेटिंग का. एक बार वो चीजें थोड़ा पढ़ लेना. अगर क्लियर होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो कल पक्का पूछना मुझसे, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, Yes, sir. सुप्रीत आप पक्का पूछ लेना अगर कोई डाउट आता है तो,
क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी थ्रू आउट द कोर्स और आपको आगे भी बहुत हेल्प करेंगी ये चीज़ें. So subnetting and supernetting. Yeah, these are the two different terms. Okay. Okay, sir. I'll read about it. हाँ, तो मैं पढ़ लेना है इनके बारे में. तो CIDR में कोई डाउट है? इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं. CIDR की क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसकी फुल फॉर्म. इसकी फुल फॉर्म होती है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. ओके, इसके अंडर ही आता है ये दो चीजें, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग. ठीक है. और ये वैल्यू बताती है कितनी बिट हमारे नेटवर्क के लिए यूज हुई है. जो बाकी बिट्स बचती हैं वो हमारी होस्ट एड्रेसेस के लिए यूज होती हैं. ये सब जो क्लासेस होती है ना हमारी, क्लास ए, क्लास बी, जो आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं हमारे, ऐसे इसके बारे में पता होगा. इसके बारे में. क्लास के बारे में, क्लास ए हाँ हाँ. नेटवर्क, क्लास बी नेटवर्क. Yes, हाँ, sir. तो Yes, उनके, sir. हाँ, उनमें भी CIDR वैल्यूज होती है. क्लास ए में रहता है हमारा /8, इसमें रहता है /16. जो क्लास डी रहती है हमारी, उसमें रहता है /24. ये CIDR वैल्यू बताती क्या है कि स्टार्टिंग की 8 ऑक्टेट हमारी नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज हो रही है, बाकी बची जो ऑक्टेट्स वो हमारी होस्ट एड्रेसेस के लिए यूज हो सकती हैं. ठीक. हम्म. ये क्लासेस में एक बेसिक डिफरेंस है, एक बार ये पढ़ लेना, सबनेटिंग एंड सुपरनेट. श्योर. ठीक है. Yes, sir. हाँ, तो ये double second है. या ये मुझे कह रहा है आप नेटवर्क एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हो विद CIDR वैल्यू नेटवर्क को स्कैन करने के लिए. ओके, देन लेट्स ट्राई दिस. ये कैसे करता है ये काम. अभी के लिए मेरा ये एड्रेस क्या था, 2.2.2.1. अगर मैं इसकी CIDR वैल्यू देखना चाहूँ तो मुझे जाना पड़ेगा वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में, क्योंकि अभी मैं VM यूज कर रहा हूँ तो मुझे इस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे मिलती है. तो लेट्स सी क्या है, एक बार भूल जाए, एक बार देखते हैं. क्या, तो ये पैनल खुलता है जब आप उस ऑफिस को वहां से ये खोलते हो, नेटवर्क वर्चुअल एडिटर. आपके पास ये पैनल खुल के आता है. अगर मैं यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगरेशंस पे जाऊँ या फिर होस्ट ओनली पे जाऊँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सबनेट मास्क 255.255.255. सबनेट मास्क भी वही बताता है आपको कि CIDR वैल्यू क्या है, फिर होस्ट का है और नेटवर्क के लिए क्या एड्रेस स्पेसिफाई किया है हमने. दिख रही है सबनेट मास्क है 255.255.255. ओके. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे दिया है सबनेट IP 2.2.2.2. जहाँ पे मेरा 255.255.255 लिखा है ना, एक ऑक्टेट में मैक्सिमम 255 हो सकते हैं, 0 से 255 होते हैं. ठीक है. तो मैंने ये तीनों तो स्पेसिफाई कर दिए, तीनों फुल कर दिए मैंने. फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 250 या फिर 205 लिख देता मैं यहाँ पे. वो होस्ट एड्रेसेस यहाँ से भी यूज कर सकता था. हो सकता है जब मैं IF कॉन्फ़िग करता तो मुझे यहाँ पे 2.2.2. समथिंग 150 या 170 ऐसा कुछ मिलता देखने को. ओके, बट मैंने यहाँ पे अगर 255 स्पेसिफाई किया है, मतलब क्या है उसका कि उससे ज्यादा तो IP एड्रेस हो ही नहीं सकते मेरे पास. तो वो ऑक्टेट फुल है मेरे पास ऑलरेडी. जो बची लास्ट ऑक्टेट, सिर्फ वहां से IP एड्रेसेस मिल सकते हैं होस्ट को. तो ये हमारा होता है हमारा सबनेट मास्क. ये भी उसी का पार्ट है CIDR नोटेशन का. एक बार पढ़ लेना उस चीज को भी. तो अभी के लिए मेरा CIDR वैल्यू क्या है, 255 मतलब 1 2 और 3 ऑक्टेट. ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, तो 8 दिए 24, 8 3 24. CIDR वैल्यू क्या हुई /24. लेट्स ट्राई दिस. एड्रेस क्या है मेरा, 2.2.2 है और लास्ट में /24 आना है. तो 2. या 2.
2.2.2.0 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आप 0 से स्टार्ट करो, और पूरा एड्रेस दे रहा हूँ कि 24। स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट मेरे नेटवर्क की हैं, बाकी जितने भी ऑक्टेट्स बचती हैं या फिर जितने भी बिट्स बचती हैं उन सबको ट्राई करो, सबको पिंग करके देखा, फिर सबके पास आर्क पैकेट्स भेजो कि वो एक्टिव है या नहीं। व्हेन आई प्रेस एंटर, वो यहाँ पे सिंपल एक पिंग कमांड भेज रहा है, जो हम सिंपल भेजते हैं गूगल के पास, दैट यू आर एक्टिव और नॉट, वो सब। ओके, इफ आई सिंपल पिंग google.com, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक एको रिक्वेस्ट जाती है गूगल के पास और वो रिप्लाई करता है, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखेगा। अब जस्ट बिकॉज मैं होस्ट पे हूँ तो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं बाहर कहीं इंटरनेट से, तो गूगल के पास तो कमांड जाएगी नहीं फिलहाल, बट हमारा ये वाला जरूर काम करेगा। इसने मुझे बताया कि इसको 3 या 4 एड्रेसेस मिले हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब मुझे पता है कि 2.2.2.128 ये मेरा एड्रेस है, रोज मैंने यहाँ पे जब IF कॉन्फ़िग किया तो मुझे यही मिला था। ओके, तो ये तो विक्टिम का एड्रेस है नहीं, और 2.1 हमारा नेटवर्क का गेटवे होता है, तो ये भी नहीं है। 2.54 ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करता है VMware, तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा? 2.129। हाँ, तो ये हमारे विक्टिम का एड्रेस हो सकता है। इन केस आपके पास बहुत सारी मशीन दिखाती है, तो अगर मैं एक और मशीन एक्टिव करता हूँ मेटास्प्लॉइट टेबल की ही, देन लेट्स सी, बस मल्टीपल्स VMs आएंगी यहाँ पे, मल्टीपल नेटवर्क एड्रेसेस देगा, फिर वो इसको भी होस्ट पे डाल देते हैं एक बार। देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है वहाँ पे। और फिर उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा होस्ट कौन सा है, फिर हमारा विक्टिम कौन सा है। ओके, इसको हमें टारगेट करना है। तो ये भी स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्प स्कैन। हम आर्प स्कैन से देखते हैं, हमें एक नई IP मिली है 2.130 और 2.129। अब मुझे पता नहीं कि मेरा विक्टिम कौन सा हो सकता है, तो उसके इसमें दो तरीके रहते हैं सिंपल। अगर आपको पता है कि आपका विक्टिम विंडोज यूज कर रहा है या फिर लिनक्स यूज कर रहा है, आप सिंपल पिंग कर सकते हो यहाँ पे, पिंग उसका IP एड्रेस 130 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे TTL वैल्यू मिल रही है 64, एंड आई नो 64 TTL वैल्यू यूज होती है लिनक्स के लिए। ओके, और अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो 129 हो सकता है यहाँ पे मेरी विंडोज चल रही हो इन केस। तो अगर यहाँ पे 129 करो तो TTL वैल्यू यहाँ पे 128 मिलती है या फिर 32 मिलती है, तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये विंडोज मशीन है, ये मेरा टारगेट नहीं है। यहाँ मुझे 64 मिला है, हो सकता है ये मेरी लिनक्स की मशीन हो, तो ये मेरा टारगेट हो सकता है उस केस में। ठीक है, तो पिंग एक सिंपल तरीका है जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इससे पता नहीं चलता है, देन यू कैन स्कैन द होल नेटवर्क और ओपन पोर्ट्स, वो भी आगे करेंगे हम। ओके, तो अभी के लिए हमारा टारगेट क्या है? .128, where it is, yeah, this will be our target. Okay, तो वी आर डन विद लाइव होस्ट। आप सिंपल पिंग कर सकते हो, लेकिन पिंग करने के आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होस्ट या फिर उसका IP एड्रेस क्या है, तो पता होना चाहिए। देयर इज अनदर कमांड, नेट डिस्कवर, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं सिंपल नेट डिस्कवर लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो आप, दिस इज द IP एड्रेस विद द CIDR नोटेशन /16, और अभी ये चेंजेस किस ऑक्टेट में कर रहा है? थर्ड वाली में, 37, 30, 33, 35। देख रहे हो? इसने मुझे एड्रेस ढूंढ के दिया है 2.129, ये उसका मैक एड्रेस है। ठीक है, So if it is bar 16 means the first two octet is for the network. फॉर द नेटवर्क, The first two octets is यस, for the network.
networks, right? यस, It इस is पे कोई यहाँ पे March 16. हाँ, इस बार 16 है, मतलब स्टार्टिंग की 2 ऑक्टेट, पूरी 2 ऑक्टेट। जरूरी नहीं है कि हर That बार means पूरी 2 ऑक्टेट। 255.255.0.0. यस, सबनेट मास्क। Okay. Yeah, subnet mask in this time, if I specify this 192.168.0.010/16, इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0। इट मीन्स Zero. स्टार्टिंग की 2 Class. ऑक्टेट हमारी फुल है, Okay. ठीक है। तो होस्ट को एड्रेसेस कहाँ से मिलेंगे? थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट से, ओके। It comes in a क्योंकि class B or something. डिपेंड करता है, आप क्लास सी भी स्पेसिफाई कर सकते हो, क्लास बी भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर सिंपल देखा जाए, सिंपल डेफिनेशन समझाऊं मैं आपको, तो 192 जो हमारा होता है वो क्लास सी का पार्ट होता है, ओके। अब यहाँ पे /16 है, बट क्लास है मेरी सी, तो यहाँ पे आता है सुपर नेटिंग का पार्ट, Okay. क्योंकि मैं यहाँ पे नेटवर्क, अगर क्लास सी का देखा जाए तो क्लास सी के हिसाब से 3 ऑक्टेट यूज होनी चाहिए थी नेटवर्क के लिए, बट मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ 2, और 2 ऑक्टेट यूज कर रहा हूँ होस्ट के लिए। तो मैंने नेटवर्क वाले पार्ट से एक पूरी ऑक्टेट ले ली होस्ट के लिए, ये पार्ट आता है सुपर नेटिंग का, ठीक है। Yes, sir. हाँ, एक बार पढ़ लेना, ये चीजें आपको क्लियर होंगी फिर बाद में, अगर नहीं होती तो कल मुझसे पूछना जरूर कि सर ये इशू आता है, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे यहाँ पे एक एड्रेस दिया इसने 2.129, क्योंकि अभी चल ही रहा है ये, तो काफी टाइम ले लेता है। अगर आप इसको एक एड्रेस देते हो लाइक 2.2.2.0/24, सॉरी, मुझे -r स्पेसिफाई करना पड़ेगा रेंज के लिए, तो वो भी दे देते हैं। तो अब देखो मेरा एड्रेस क्या है, और फिनिश्ड, इन्हें कंप्लीट भी कर दिया इसने, ओके। यहाँ पे मेरे पास एड्रेस क्या था? 2.2.2.0/24, जो मैंने स्पेसिफाई किया था वहां पे रेंज पे, ओके। ये एड्रेस था मेरे पास। इसने पूरा नेटवर्क स्कैन किया, मुझे 2 एड्रेस ढूंढ के दिए। एनी डाउट इन दिस पार्ट, स्कैनिंग पार्ट, फाइंडिंग No, लाइव sir. होस्ट? No. ओके, कहीं भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा, स्कैनिंग, ओके। या तो वी आर डन विद लाइव होस्ट स्कैनिंग। हमें पता चल गया कि कौन कौन से लाइव एक्टिव मशीन्स हैं इनसाइड द नेटवर्क, ओके। उसके बाद आता है पोर्ट स्टेटस, ये थोड़ा थ्योरी पोर्शन रहेगा पोर्ट स्टेटस वाला। अब जब आप सिंपल nmap करते हो, yeah, अगर मैं सिंपल nmap चलाता हूँ इस मशीन पे, देन लेट्स सी मुझे क्या मिलता है। तो nmap तो फिर आईपी एड्रेस, ठीक है। अब nmap की अगर आप सिंपल कमांड चलाते हो तो वो डिफरेंट पैकेट्स भेजता है, विद सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हो सकता है, वहां पे अर्जेंट फ्लैग हो सकता है, पुश फ्लैग हो सकता है, कोई भी फ्लैग रख के, सिवाय रीसेट के, क्योंकि रीसेट फ्लैग जनरली जो रिसीवर रहता है वो भेजता है हमारे पास। मैं यहाँ पे वायरशार्क ओपन कर रहा हूँ अपना, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसे पैकेट्स जा रहे हैं और कैसे पैकेट्स आ रहे हैं, ओके। वायरशार्क स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार। ये हमारे डिफरेंट इंटरफेसेस रहते हैं, इथरनेट, एनी, लूपबैक, एनफ्लैग, एनफ्लॉग, सॉरी। मैं सिंपल इथरनेट यूज करूंगा। इथरनेट पे जितने पैकेट्स जा रहे हैं या फिर वहां से आ रहे हैं, वो सब मुझे कैप्चर करने हैं। जस्ट गिव मी सेकंड, तो इंटरफेस ठीक कर देते हैं इसका। अभी नहीं होगा, होस्ट पे हूँ मैं, ओके। तो नेटवर्क कैप्चर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वायरशार्क के थ्रू, और मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ nmap वाली। लेट्स प्रेस एंटर। अभी देख रहे हो यहाँ पे पैकेट्स आ रहे हैं, नंबर्स बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी nmap जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। देख रहे हो कितने पैकेट्स आ चुके हैं? 2063। तो ये और ये एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कहीं भी कोई क्वेरी हो पूछ लेना है एक बार के लिए, ठीक है।
तो हमारा पहला पैकेट देखते हैं, पैकेट नंबर 1। ये इस टाइम पे गया था, टाइम नहीं देखना अभी के लिए हमें, तो टाइम को मैं हटा रहा हूँ। मुझे सोर्स देखना है कि कहाँ से गया, मुझे डेस्टिनेशन देखना है कि कहाँ पर गया, देन प्रोटोकॉल समझना है कौन सा प्रोटोकॉल उसने यूज किया है, देन लेंथ मुझे नहीं देखनी कितने लेंथ का पैकेट था, इंफॉर्मेशन मेरे काम की आएगी वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो कैप्चरिंग मैंने कर दी पॉज, अभी चलते हैं स्टार्टिंग में। ओके, तो इफ यू कैन सी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक मिनट के लिए। ये पैकेट्स देखो, इसने सिंक पैकेट भेजा 128 से 129 पे, सोर्स एड्रेस है 2.128 और डेस्टिनेशन है 129। इसने भेजा सिंक पैकेट, ठीक है। देन उस रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट, अगर सामने वाले के पास से रीसेट फ्लैग आता है उस पोर्ट के लिए, मैं पोर्ट देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो सोर्स पोर्ट दिख रहा है 53858 और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 5900। nmap की जो सिंपल कमांड है nmap और फिर आईपी एड्रेस, वो सिर्फ कॉमन 1000 पोर्ट्स ही स्कैन करता है। बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई पोर्ट नंबर्स यू कैन स्पेसिफाई, वो हम आगे देखेंगे, अभी वो भी पार्ट आएगा। तो हमारे ये पैकेट समझ लेते हैं कौन सा पैकेट कहाँ पे गया है, ठीक है। दिस इज द सोर्स पोर्ट एंड दिस इज द डेस्टिनेशन पोर्ट, ओके। एंड कौन सा फ्लैग लग के गया था, वो था सिंक फ्लैग। अगर मैं फ्लैग्स को आगे और थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा और इनमरेट करता हूँ, तो ये बिट्स में यूज होता है हमारे पास। स्टार्टिंग की जो 3 बिट्स रहती हैं वो रहती है रिजर्व्ड, नोट सेट, कभी सेट नहीं होती वो। देन द फोर्थ बिट इज यूज्ड फॉर नन्स, Breaking. देन दीज आर द डिफरेंट बिट्स यूज्ड फॉर डिफरेंट फ्लैग्स। जो फ्लैग एक्टिव होगा वो आपको 1 मिलेगा, जो फ्लैग एक्टिव नहीं होगा वहां पे आपको 0 मिलेगा, सिंपल। यहाँ पे सिर्फ सिंक पे 1 है, यानी कि सिंक फ्लैग एक्टिव था मेरा, तो यहाँ पे सिंक दिखा रहा है इन सिंपल मैनर्स, ओके। Sir, I have opened Metasploit and Kali Linux in my system, but if Okay. when I'm trying to ping, it is not able to give me any results. Okay, just show me the screen. You can cast your screen. I'm Ah, stop my okay, screen. I'll stop my screen. You can okay, share sir. your screen. Yeah, I can see your screen. Okay. So this is my Metasploitable. I've opened it is 192.168.3.17, and if I open Okay. Kali, I put ping, same thing. From that time, it's just showing the same thing. Even if I do net discover, it just shows me blank. देखो नेटवर्क, जब आप नेट डिस्कवर चलाते हो ना, तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप नेटवर्क एड्रेस स्पेसिफाई करो। That also I tried, but it's empty. ओके, आपका नेटवर्क एड्रेस दोनों में सेम है 192.168.3। 3.17. ओके, No, it is different. देन हाउ, वो कैसे पता लगाएगा उसको फिर? Yeah. But how to? It is in the same system, right? Same virtual machine, same thing. Why is it showing two different networks? वर्चुअल मशीन जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो अगर मैं आपको सिंपल, लेट मी शो माय स्क्रीन, देन आई कैन बेटर एक्सप्लेन यू। So I'm sharing my screen. Is my screen visible? Yes. Okay then. So if I press right click on the machine and go on the setting part, Okay. can you see it? Yes.
I have 3 different network configuration: bridge, net, and host. Okay. And when I open the network configuration part, uh, this setting, you can see what will be the subnet for my this network. For host only part will be the subnet address for my net part, and for bridge वो automatically लेगा अपने आप DHCP से, ठीक है? Okay. ये मेरे एड्रेसेस है, हो सकता है आपकी दोनों मशीन्स डिफरेंट नेटवर्क्स यूज करी हो सकता है एक नेट पे हो, एक होस्ट ओनली पे हो। आप वो चेंज करके ट्राई कर लो एक बार, अगर दोनों सेम पे नहीं है तो उन्हें सेम पे कर लो, देन ट्राई करो। अगर सेम नेटवर्क पे होंगे तो डेफिनेटली वो उसको पिंग कर पाएगा। So can I share the screen? Can you just guide me to check? या नॉट एन इशू, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। या यू कैन शेयर इट। यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। File settings in Kali Linux or this one? Yeah. या सेटिंग फॉर काली लिनक्स। Okay. Okay. I have to go for bridge adapter. आई विल प्रेफर द नेट और द होस्ट ओनली। तो जो वर्चुअल मशीन है वो हमेशा नेट पे या फिर होस्ट ओनली पे चलानी चाहिए, ब्रिज पे नहीं चलानी चाहिए हमें। इन केस हमारी वीएम में कोई इशू हो, वीएम के अंदर कोई वायरस वगैरह आ गया, फिर कोई भी मैलिशियस फाइल हो जो एग्जीक्यूट हो रही हो बैकग्राउंड पे, फिर कोई भी किसी भी काइंड का इशू हो, किसी तरह का इशू हो, तो वो उस नेटवर्क में भी फैल सकता है। सिंपल बढ़िया रहता है कि उसके या तो नेट पे रखो या फिर होस्ट ओनली यूज करो आप। So I'll use it for NAT only. NAT. या दैट्स गुड, यू कैन यूज नेट। ओके, And Metasploitable network. This also NAT. या नाउ चेक द आईपी एड्रेसेस फॉर बोथ द मशीन्स। You don't have to restart them. Oh, okay. I thought I. Yeah. Ten dot 02.15. Okay, now it is in the same network. Yeah, now they are in the same network. Just try ping. Two dot 15. And how is it possible the both the machines are using the same IP address? If you can say, what's the IP address? 2.0.2.15. And for the Metasploitable, the address is same. Which is not possible, right? Yeah, this shouldn't be possible.
कि जब हमारा राउटर आईपी एड्रेसेस एलोकेट करता है तो हमें डुप्लीकेशन के लिए हमेशा चेक करता है। Okay. हाँ, तो ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारी जो पिंग रिक्वेस्ट है वो इसके पास ही जा रही हो, लूप बैक हो रही हो वो रिक्वेस्ट, वो भी पॉसिबल है। अब कुछ both the machines have same IP address. So I should reinstall something, Metasploitable. No idea for this case, Okay. but IP addresses different होने चाहिए क्योंकि different IP addresses ही allocate होते हैं machines को. Okay, Uh-huh. You have a link, sir, for Metasploitable, way to install, download. I'll give you a link. Not an issue. Let me share my screen. Okay. I'll delete these files of Metasploitable. Maybe I have installed it from some other website. So I'm sharing my screen. Yeah, my screen is visible. Yes. Okay then. So let's start our practical part again. At the end of the session, I'll give you the link. Okay. 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 Sir. Yeah. So if you can see, यहाँ पे sync packet जा रहा है मेरे पास. पोर्ट नंबर क्या है 53853. इस पोर्ट से पैकेट गया इस पोर्ट पे. मेरा सोर्स था 2.128 तो डेस्टिनेशन क्या है 2.129. अब इसी पोर्ट से मेरे पास रिक्वेस्ट आई रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट. जब भी पोर्ट से रीसेट की रिक्वेस्ट आती है, मतलब जब ये वहां से रिक्वेस्ट, वहां से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है विद रीसेट फ्लैग एक्टिव, ओके, इसका मतलब क्या है मेरा पोर्ट क्लोज है, यानी कि वहां पे आप कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते. तो इसने इस पोर्ट को कर दिया डिस्कार्ड. अगर आप देखो मेरे टर्मिनल पे तो यहाँ पे ये 5900 पोर्ट है ही नहीं. यू कैन सी Okay. कहीं नहीं है 5900 पोर्ट. Mhm. इसका सिंपल सा मतलब क्या है, एनमैप ने इन सब पोर्ट्स पे जो हमने 1000 कॉमन पोर्ट स्पेसिफाई करके रखे हैं एनमैप ने, उन सबके पास एक सिंक पैकेट भेजा. अगर वहां से एनमैप ये काम 2 बार करता है, वो 2 सिंक पैकेट्स भेजता है. अगर दोनों में से किसी के लिए भी उसको रिस्पॉन्स में रीसेट फ्लैग नहीं मिलता या फिर रिस्पॉन्स ही नहीं आता तो वो दिखाता है पोर्ट इज ओपन. ओके, इन केस वहां से रीसेट फ्लैग आ जाता है तो पोर्ट हमेशा क्लोज रहता है हमारा. Okay. इन केस वहां पे आपका आता है रिस्पॉन्स में सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपका एनमैप दिखाता है आपको. द फर्स्ट वन इज ओपन फिल्टर्ड, सेकंड वन इज क्लोज्ड फिल्टर्ड. व्हाट इट मींस, एनमैप आपका श्योर नहीं है कि पोर्ट आपका ओपन है या फिर एक बीच में फायरवॉल लगी है. अगर बीच में फायरवॉल लगी है तो आपको सिंपल फिल्टर्ड दिखाता है. देयर इज अ फायरवॉल एक्टिव बिटवीन द अबव द विक्टिम, यू कैन से. विक्टिम को विक्टिम तक पहुंचने के लिए आपको फायरवॉल को बाईपास करना पड़ेगा उस केस में. ठीक है. एनमैप आपको कहता है कि बीच में एक फायरवॉल लगी है तो आपको फिल्टर्ड दिखाएगा उस केस में. यहाँ पे ओपन दिखा रहा है अभी हमारे पास स्टेट में, फिर आपको वहाँ पे फिल्टर्ड दिखाता है. ओके, तो ये स्टेट्स हैं डिफरेंट जो एनमैप आपको दिखाता है. द फर्स्ट वन इज ओपन, की पोर्ट ओपन है. सेकंड वन इज क्लोज्ड, की पोर्ट क्लोज है. द थर्ड वन इज फिल्टर्ड, बीच में फायरवॉल लगी है. द फोर्थ वन इज ओपन फिल्टर्ड, हो सकता है पोर्ट ओपन हो सकता है पोर्ट फिल्टर्ड हो. एनमैप इज कंफ्यूज्ड, वो एनश्योर नहीं, वो मतलब पूरा 100% श्योर नहीं है उस चीज के लिए. ओके, द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज क्लोज्ड एंड अनफिल्टर्ड. हो सकता है पोर्ट क्लोज्ड हो या फिर फिल्टर्ड हो, उसके लिए भी वो श्योर नहीं है. ठीक है. तो दीज आर द स्टेट्स जो एनमैप आपको दिखाता है अपने रिजल्ट्स में. ओके, देन दिस विल बी द कमांड्स जो हम ट्राई करने वाले हैं. तो जल्दी से इनको ट्राई कर लेते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:08 और 12 बजे तक हमें क्लास एंड करनी है. अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है इन केस, देन वी विल कंटिन्यू विद द सेम इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, Okay. या जस्ट गिव मी अ मिनट.
Yeah, let's continue. So this is our first command, nmap. मैंने जहाँ पे सिंपल आईपी लिखा है वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस आएगा। मैंने जहाँ पे भी CIDR लिखा है वहाँ पे CIDR रोटेशन आएगी आपकी, लाइक /24 है या फिर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो। ठीक है, नेटवर्क मतलब यहाँ पे नेटवर्क आएगा, तो सिंपल वर्ड्स यूज किए मैंने। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट कमांड, nmap बेस आईपी एड्रेस। ये हमने अभी एग्जीक्यूट भी की थी, जिसमें हमें ये रिजल्ट्स मिले। ठीक है, yes. So after this we have something called nmap -v। -v हम यूज करते हैं वर्बॉस के लिए। तो लेट्स ट्राई दिस। तो जस्ट बिकॉज अभी आपका सिस्टम एक्टिव होगा, आई एम श्योर आप अभी इसको ट्राई कर सकते हो लगे हाथ मेरे साथ। अगर प्रैक्टिकल में साथ साथ करोगे तो अच्छा रहता है, ताकि इश्यूज साथ के साथ क्लियर हो सकते हैं उसके हमारे पास। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें ही दिखाता है वर्बॉस में, बट यू कैन यूज हाइफन हाइफन वी। यू कैन स्पेसिफाई 10v, जो कि मैक्सिमम वर्बॉस देता है आपका एन में। ओके, मैंने अभी सिंपल वी लगाया तो ये मुझे बेसिक वर्बोसिटी के साथ दे रहा है अभी। तो ये बता रहा है कि इसको एक पोर्ट मिला है जिसका वर्ड ओपन पोर्ट, दिस पोर्ट टीसीपी का है, और ये उसका आईपी एड्रेस है। ओके, ये इसने बताया कि इसने एक सिंक्स टेल्स स्कैन कंप्लीट किया है, जो कि ये बेसिक करता है अपनी नॉर्मल कमांड्स पे। एक सिंक पैकेट भेजता है और रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है। ओके, देन दिस इज द रिजल्ट और द आउटपुट। तो these are the services जो इस पोर्ट पे चल रही है 21 पे FTP। these are the ports and these are the services. All right, so after -v we have our next command, the nmap -ip. Sorry, nmap space ip. Suppose you have to enumerate or you have to scan multiple machines at the same go, तो क्या कर सकते हो? सिंपल nmap, अभी मेरे पास यहाँ पे दो मशीन एक्टिव है, अपने अभी ऊपर हमने जब स्कैन किया था 130। तो 129 और 130 दो मशीन एक्टिव है मेरे नेटवर्क पे। दोनों को स्कैन करते हैं अभी एक साथ में। तो कमांड विल बी nmap और आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस था 2.2.129 स्पेस 130। मैं मल्टीपल आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर सकता हूँ, द फर्स्ट आईपी स्पेस एंड द सेकंड आईपी। यू कैन यूज -v फॉर वर्बोसिटी एज वेल। तो लेट्स स्पेसिफाई -v। मैं मल्टीपल वीज दे रहा हूँ यहाँ पे अभी। ओके, टू गेट हायर वर्बोसिटी। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द, और दिस इज, यू कैन से, द पैकेट्स जो ट्रांसमिट हुए थे। आप देख सकते हो कि इस पोर्ट पे, इस पोर्ट से इस पोर्ट पे गया, और यहाँ पे इसने सिंक भेजा, सिंक भेजा, सिंक भेजा, सिंक भेजा। ओके, दिस इज द आउटपुट। जो रेड वाले हैं वो हमारे रिस्पॉन्स में आए हैं, और जो सिंपल ग्रे वाले हैं वो यहाँ से गए हैं हमारी तरफ से। ठीक है, यू कैन सी रीसेट 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 फ्लैग्स है सब पे। दिस इज अवर, या यू कैन सी, यू सी द आउटपुट, डिस्कवर्ड पोर्ट दिस ऑन दिस आईपी। ऑलराइट, ये सब कॉमन है हमारे लिए। हमने अभी ये स्टेप का आउटपुट देखा था थोड़ी देर पहले ही ऊपर। इफ यू स्क्रॉल डाउन, अब ये बता रहा है कि उसने ये किस चीज के लिए, रीजन क्या था उसके लिए। उसको वहां से सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट मिला है रिस्पॉन्स में, तब उसने बताया कि ये पोर्ट ओपन है। उसने रीजन भी दिया है मुझे अपनी बात, ATL भी दिया है, 64 है। ओके, ये सर्विस और स्टेट तो पहले दिखा रहा था वो। तो ये है मेरा 129 के लिए, 2.129, और ये आउटपुट है 2.130 के लिए नीचे। ये रहा, यहाँ पे भी सेम रीजन है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट मिला है इसको रिस्पॉन्स में, एंड दिस इज द TTL वैल्यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको TTL वैल्यूज की एक, TTL वैल्यूज के लिए एक लिंक दिया होगा आपको।
मैंने कोई लिख दिया था लास्ट क्लास में TTL वैल्यूज के लिए। दिया था। ओके, तो एनी डाउट, कोई क्वेश्चन या फिर कोई चीज समझ में आई हो तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। देन you can also specify the whole network, or you can specify the IP address or the host range, से हम बोलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 200 तक जो होस्ट रेंज थी वो स्पेसिफाई की है, फिर वो स्कैन करने की कोशिश की है। लेट्स ट्राई दिस कमांड एज वेल। हम इसका आउटपुट नहीं देखेंगे, सिर्फ कमांड ट्राई कर ले रहे हैं एक बार के लिए। तो दिस इज अ कमांड, एक मैं कर रहा हूँ 100 से 200 के बीच जितने भी मेरे होस्ट्स हों, जिनका आईपी एड्रेस 2.100 से लेकर 2.200 तक आ रहा हो बीच में, उन सबको स्कैन करने की कोशिश करो। ओके, दिस इज अ सिंपल कमांड जहाँ पे आप होस्ट रेंज स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। Yeah. After the host range, you can also specify the whole network. You can also scan the whole network with the CIDR notation. You just have to specify the network address 2.2.2.0/24. 24 is your CIDR notation, CIDR value. Okay. तो मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ 1000 कॉमन पोर्ट्स को ही स्कैन करता है सिंपल कमांड्स में। बट क्या हो अगर मैं चाहूँ कि ये पूरे 65535 पोर्ट्स को स्कैन करे, तो उस केस में आप यहाँ पे पोर्ट की रेंज दे सकता हूँ, nmap -p। -p हम यूज करते हैं पोर्ट्स के लिए, जो स्मॉल p है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0 से 65535। रेंज में आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका ये मन करे, मुझे इस रेंज के पोर्ट स्कैन करने हैं, तो वहाँ पे आप रेंज देते हो। एंड दिस इज माई IP एड्रेस। मैं 130 को स्कैन कर लेता हूँ। ठीक, ये आपकी कमांड है जहाँ पे आप पोर्ट्स की रेंज स्पेसिफाई करते हो, -p और देन पोर्ट्स की रेंज, ठीक है। दिस इज माई IP एड्रेस। Then after the port range, you have something called -t। -t हम यूज करते हैं स्पीड के लिए, मुझे किस स्पीड से ट्रैफिक भेज। हेलो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो सुप्रीत। I can hear you, sir. ओके, सो आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो कहाँ तक हुआ है आपका, मतलब कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक The सुना है आपने? commands which you are showing, nmap, all the commands. Yeah, these things. Yeah. तो हमने कौन सी कमांड की थी आपके हिसाब से लास्ट? I think you didn't start only for me. ओके, द फर्स्ट कमांड। हाँ. ओके, मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम इनको ट्राई कर चुके हैं, प्रैक्टिकल देख चुके हैं, तो आपका आउटपुट शो कर दूंगा मैं इतना लगे हाथ। ओके, तो हम सीधा Okay. आउटपुट देखते हैं इनका डायरेक्ट, वो आपको कमांड समझा दूंगा मैं। तो ये हमारी सिंपल कमांड थी nmap, और मैंने IP एड्रेस स्पेसिफाई किया था। तो nmap हमारा कॉमन 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है इस केस में, ठीक है। Okay. हमने यहाँ पे वायरशार्क के थ्रू पैकेट्स को एनालाइज करने की कोशिश की थी कि कौन सा फ्लैग यूज हुआ है हमारा, कौन सा रिस्पॉन्स क्या आया है हमारा वहाँ उसके लिए, ठीक है। Okay. तो ये मेरे इस पोर्ट से रिक्वेस्ट गई है 7777 से, किस पोर्ट पे गई है वो है 53858। तो दिस इज माय सोर्स एड्रेस एंड दिस इज माय डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, Yeah.
not an issue there. So after this, we have our command nmap-v. We use -v for verbosity. You can specify 10 v's here, जो कि मैक्सिमम आपको nmap अलाउ करता है. आप यहाँ पे 10 टाइम्स v यूज कर सकते हो और मैक्सिमम वर्बोसिटी. ओके, तो जब मैंने -v यूज किया यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया कि उसने एक पोर्ट डिस्कवर किया है. पोर्ट नंबर है 80, टीसीपी का पोर्ट है और ये उसका आईपी एड्रेस है. ठीक है, तो -v इज यूज्ड फॉर वर्बोसिटी. ओके, So verbose means more information or something like that. needs for more information. Okay. Okay, so One after query -v, here. yes ma'am. As you said, like we can use 10 times verbosity, and like here we have used single time and we got the result TCP or UDP port. So what level of information we will get in the like 10 time verbosity? OS kind of like नहीं, ओएस की इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल वर्बोसिटी में नहीं दे सकता वो आपको. उसके लिए अलग से कमांड्स, अलग से स्कैन्स है उसके लिए. वो हम आगे करेंगे अभी. मैंने अभी अगर आपने नेक्स्ट एग्जांपल देखा हो तो मैंने यहाँ पे 5 V's यूज किए हैं. स्क्रीन विजिबल होगी सबको? visible. सुप्रीत, Yes. ओके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स V यूज किया है. Correct. करेक्ट, और मैंने 2 आईपी एड्रेसेस भी दिए हैं, माई IP1 स्पेस IP2. तो इस तरह से Okay. आप मल्टीपल आईपी स्कैन कर सकते हो सेम टाइम पे. और यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द नेटवर्क एड्रेस with CIDR notation. Okay, and you can also use the host range. होस्ट रेंज का हमारे पास एक कमांड है अभी यहाँ पे, हमारे पास एग्जांपल आएगा आगे, वो बताऊंगा मैं आपको. मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स वी यूज किया है. तो लेट्स से उसने मुझे रिजल्ट में क्या बताया. उसने मुझे रीजन भी दिए हैं कि उसको ये पोर्ट ओपन मिला. तो उसने ये ओपन क्यों बताया, जस्ट बिकॉज उसको रिस्पॉन्स में सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिला है. और अगर हम यहाँ पे हमारा वायर शार्क, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे वायर शार्क देखूं, तो जिस पैकेट के लिए उसको रीसेट और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिला है उसको उसने क्लोज बताया है. बट अगर उसको वहां पे रीसेट की जगह सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, तो उसने बताया कि वो पोर्ट ओपन है. Open है. ठीक है, एंड द सर्विस इज FTP. और अगर मैं मीन्स 10 टाइम्स यूज करने वाली हूँ तो इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे? उसके लिए मैं श्योर नहीं क्या इन्फॉर्मेशन देगा, बट यू कैन ट्राई योरसेल्फ. अच्छा ठीक है. कि मैंने 10 टाइम्स भी कभी यूज नहीं किया, अच्छा तो इसके लिए आपको ट्राई कर सकते हो कि क्या आउटपुट आता है और बताना हमें कि क्या मिलता है, क्या अलग दिखता है उस केस. ठीक है, ये उसने मुझे TTL वैल्यूज भी दी है, तो ये भी उसी का पार्ट है वर्बोस का. ओके, तो आफ्टर दिस हमने यहाँ पे nmap बेस आईपी एड्रेस की रेंज दी है. लाइक मेरे होस्ट अगर इस रेंज के हो, सपोज मेरी मशीन का एड्रेस अगर 2.100 से 2.200 तक आ रहा है बीच में कहीं पे, तो उनको स्कैन करना है मुझे. मैंने यहाँ पे होस्ट की रेंज दी है. क्लियर सुप्रीत? Yes. यस, तो ये बता रहा है मेरा होस्ट की रेंज 100 से 200 तक. ठीक है, Got it. सिंपल nmap स्कैन है ये. बाकी उसने जो मेरी 2 मशीन एक्टिव थी 2.130 एंड 2.129 दोनों को स्कैन करके मुझे रिजल्ट दे दिया. आफ्टर दिस हमने पोर्ट स्पेसिफाई किए. मैंने बताया था कि nmap की सिंपल कमांड 1000 कॉमन पोर्ट्स को स्कैन करता है सिर्फ. ओके, तो अगर मैं चाहूँ कि पूरे 65535 पोर्ट्स को स्कैन करे nmap, तो उसके लिए मुझे पोर्ट स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. उसके लिए मैं करता हूँ -p यूज. इफ आई से nmap -p और पोर्ट्स की रेंज देता हूँ यहाँ पे, तो सभी पोर्ट्स को वो स्कैन करेगा. ठीक है, और ये मेरा आईपी एड्रेस है जिसके लिए मुझे स्कैन करना है. अब यहाँ पे पूरा नेटवर्क या फिर होस्ट की रेंज भी दे सकते हो. ठीक है, ये Yes. इसके साथ ये होस्ट की रेंज के लिए है हमारा, और ये हमारा नेटवर्क के लिए पूरा पूरा. ओके, एंड दिस इज द कमांड फॉर स्पेसिफाइंग द पोर्ट्स. ओके, तो उसके बाद हमारा आता है nmap-T. कैपिटल T हमारा बताता है कि हमें किस इंटेंसिटी के साथ हमें किस स्पीड पे स्कैन करना है.
तो हमारा जो एनमेप डिफॉल्ट काम करता है वो करता है -T और 3 पे। 5 स्पीड है, सॉरी 6 स्पीड है, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो इफ आई शो यू और में Chromium नहीं होता, डोंट वरी, हम बाद में देख लेंगे वो चीजें। तो हमारे पास 6 स्पीड्स होती हैं। एक मिनट, यहाँ पे भी तो दिखाएगा ना मैन पेज पे। आप मैन पेज हमेशा चेक करना, कोई भी जब नया टूल ट्राई करो या फिर नया टूल सीखो, क्योंकि मैन पूरा मैनुअल पेज होता है उसका। ओके, तो ये जरूर पढ़ते रहना हमेशा मैन पेज के बारे में, या फिर मैन पेज जो होता है हमारा, वहाँ से हमेशा काफी हेल्पफुल चीजें मिलती हैं। मैंने आपके जो नोट्स बनाए हैं नेटवर्क स्कैनिंग वाले पार्ट के लिए, वो पूरे इस मैन पेज से ही बनाए हैं। अगर कोई डाउट रहता है, फिर कोई क्वेरी रहती है, तो आप सिंपल मैन पेज चेक कर सकते हो। ठीक है, Okay. कि कमांड के बारे में समझना हो तो भी मैन पेज सबसे बढ़िया रहता है मेरा। तो आई एम सर्चिंग फॉर टी, तो कैपिटल टी। ये पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, -r नहीं। हम एक काम करते हैं, हम दोबारा एक स्कैन करते हैं। मेरा वायरशार्क अभी एक्टिव है, मतलब ये नेटवर्क पे कैप्चर कर रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल है। मैं एक और टैब खोल लेता हूँ इसमें। मैं सिंपल कमांड चला रहा हूँ, nmap-r, और यहाँ पे दे रहा हूँ नेटवर्क एड्रेस 130 का, और एंटर प्रेस करता हूँ इन केस में। और अब अगर मैं वायरशार्क को देखूँ यहाँ पे, तो देखो एक बार, R stands for what, sir? R स्टैंड्स फॉर कि जो पोर्ट्स की रेंज ले रहे हो, कि मुझे Range. इस पोर्ट या Okay. मुझे इस पोर्ट को स्कैन करना है, मुझे इस पोर्ट को स्कैन करना है। अब देखो यहाँ पे 58 60 58 60, वहीं से मतलब पोर्ट्स रैंडम नहीं है अब आपके यहाँ पे। अगर आप -r नहीं लेते हो तो रैंडम पोर्ट्स उठाता है आपके, और जब मैंने -r लिया तो उसने रैंडम पोर्ट्स नहीं लिए। यहाँ पे एक सीरीज में चल रहे हैं, 49152 153 154 155 6 7 8, देख रहे हो। हम्म। हाँ, तो -r यूज होता है कि प्रॉपर सीरीज में चलना है आपको। ओके। ओके, उसके लिए -r स्पेसिफाई करते हैं, -r यूज करते हैं। या फिर यू कैन सी पोर्ट नंबर 1 3 4 6 7 9 13 17 19, इन सब पोर्ट्स पे रिक्वेस्ट गई है। उसको रिस्पॉन्स किसके लिए मिला है, रीसेट रिस्पॉन्स 1 3 4 6। पोर्ट नंबर 20, अगर मैं nmap का आउटपुट देखूं, मेरा मेरा पोर्ट नंबर 20, आई थिंक 20 नहीं है, 21 एक्टिव है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्स ढूंढते हैं। तो पोर्ट नंबर 19 तक रिस्पॉन्स, पोर्ट नंबर 20 तक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट गई है। तो लेट्स सी फॉर 21, 21 के लिए रिस्पॉन्स गई इसको। ठीक है, तो 21 के लिए मुझे सिर्फ रीसेट फ्लैग मिला है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो उस केस में ये आपको बताता है कि पोर्ट ओपन भी हो सकता है और पोर्ट फिल्टर्ड भी हो सकता है, या फिर पोर्ट क्लोज भी हो सकता है, कुछ भी। तो यू कैन सी द स्टेट। इफ आई यूज वर्बोसिटी हेयर, तो आपको तीनों स्टेट दिखाएगा। हो सकता है पोर्ट ओपन हो या फिर फिल्टर हो, या तो वो दिखाएगा, या फिर सिंपल क्लोज या फिल्टर दिखाएगा। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ ओपन दिखा रहा है ये। ओके, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ रीसेट रिस्पॉन्स मिला है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है वहां से मेरे पास। इफ आई गेट ओनली रीसेट फ्लैग हेयर, इट मींस पोर्ट इज ओपन। इफ आई गेट रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट, मतलब पोर्ट इज ओपन नहीं है, पोर्ट ओपन नहीं है वहाँ पे, वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता वहाँ पे। So reset and acknowledge means port is closed. सॉरी, If you get reset and acknowledge status, that means the port is closed. इफ यू सी पोर्ट नंबर 20 से रिस्पॉन्स आया है इस पोर्ट पे, रीसेट प्लस Okay. एक्नॉलेजमेंट, तो उसने हमें आउटपुट में नहीं दिखाया यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 कहीं भी। Correct. हमारा पोर्ट नंबर 20 ओपन है।
ठीक है। Correct. अगर मैं आउटपुट देखता हूँ 21 के पास रिक्वेस्ट गई, यहाँ से इस पोर्ट से 367 Yes. से रिक्वेस्ट गई 21 के पास, Yeah. देन मुझे रिस्पॉन्स मिला है 21 से Reset. ये, हमने गलत रिस्पॉन्स Okay. 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 हमने गलत Reset रिस्पॉन्स पकड़ का लिया, है। सॉरी, दिस वाज नॉट द रिस्पॉन्स, ये हमारा गलत था, हमने गलत रिस्पॉन्स पकड़ लिया। इफ यू कैन सी, ये रिक्वेस्ट गई 59367 से 21 पे, एंड दिस इज माय आईपी एड्रेस 128 से 130। Yes, sir. ये मेरा रिस्पॉन्स आया 130 से 128 पे वापस, पोर्ट नंबर 21 से रिस्पॉन्स आया है और सेम पोर्ट पे आया है 59367 पे, और फ्लैग्स कौन से हैं, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। Acknowledge. ओके, तो इफ यू गेट अ रीसेट, इट मींस कि पोर्ट ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसने यहाँ पे खुद रिस्पॉन्स किया है, मतलब खुद रिस्पॉन्स भेजा है। ठीक है, मैं कलेक्शन रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वो था, मैंने गलत पैकेट पकड़ लिया स्टार्टिंग में। ओके, Yeah, मुझे got it. रिस्पॉन्स, हाँ मुझे रिस्पॉन्स में अगर सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है तो पोर्ट ओपन है। So if we use verbose, we'll easily get to know whether it's opened or closed. वो रीसेट का वो देगा ना आपको, रीजन भी दिखाता है फिर वो। लेट्स ट्राई 10 टाइम्स भी, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 टाइम्स भी यूज किए मैंने। नाउ लेट्स ट्राई, मुझे रीजन भी देगा इस बार, इसको ऐसा मिला है तो क्यों मिला है। ठीक है, वो हमने इसमें देखा भी है कि मेरे पास सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आया है, यहाँ पे ये फ्लैग्स थे, 21 पे आया है, 22 पे आया है, दोनों पे। देन इसने एक रीसेट फ्लैग के साथ मैसेज भेजा है उनको, मैं कनेक्शन रीसेट कर रहा हूँ। More V's means more information. More number of V's, like 10, 15 V's. यू कैन ओनली स्पेसिफाई 10। 10. No, but why we have to put 10 V's? No one will use 10 V's, मैंने तो कभी यूज नहीं किया 10 टाइम्स भी, मैं सिंपल वी यूज करता हूँ तो भी काफी रहता है मेरे लिए। What the difference? 1 V and 10 V's. What's the difference? I'll show you the difference. Okay. Okay. If you see, अगर मैं सिंपल हाइफन वी यूज कर रहा हूँ तो मुझे वो रीजंस एंड ऑल नहीं दिखा रहा, उसने ऐसा Okay. Okay. पोर्ट Okay. ओपन Okay. क्यों बताया है, टीटीएल वैल्यू नहीं दिखा रहा मुझे वो उसके लिए। Okay. Okay. ओके, अगर मैं मल्टीपल टाइम्स वी यूज करता हूँ तो मुझे ये चीजें भी दिखा रहा है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, टीटीएल वैल्यूज एंड ऑल, बाकी चीजें यहाँ होती तो वो भी दिखाता शायद। मैंने कभी मल्टीपल टाइम्स भी यूज नहीं किया, बट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ कि क्या आउटपुट आता है और डिफरेंस क्या है मल्टीपल टाइम्स भी यूज करने पे, लाइक 2 टाइम में क्या होता है, 10 टाइम में क्या होता है, वो आप ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, I got it. या तो एनी डाउट टिल नाउ कि हम हाइफन आर क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी जो पोर्ट्स की रेंज है वो एक ऑर्डर में चलती रहे। ठीक है, Got it. Yes, sir. या और अगर रिस्पॉन्स में सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो पोर्ट ओपन है, Port is the format. अगर रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो पोर्ट क्लोज है। Closed. ठीक है, जब रिस्पॉन्स आता है सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट तो रीसेट की रिक्वेस्ट भी भेजता है वहाँ पे, जो हमारी यहाँ पे गई है 21 और 22 पे, दोनों पे। Okay. तो लेट्स कंटिन्यू। हाइफन टी हम यूज करते हैं स्पीड के लिए, इंटेंसिटी के लिए, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे मिला नहीं कहीं पे कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी 4 जो 6 स्पीड्स होती हैं उसके नाम दे रखे हैं इन लोगों ने, तो मुझे वो नाम तो कहीं नहीं मिल रहे फिलहाल। ये रहे, इसमें होंगे जो टाइमिंग वाले में। ये रहे, यस, यू कैन सी हाइफन टाइम, हाइफन टी जो हम यूज करते हैं उसके 6 नाम है। 0 यूज करते हैं हम पैरानोइड के लिए, 1 स्नीकी, ये कहीं काम नहीं आते, आप सिंपल नंबर स्पेसिफाई करते हो, ये जस्ट नाम है उनके। ठीक है, अगर पता करना चाहो तो वो चीज़ है बस ये। ठीक है, तो ये नाम है पैरानोइड, स्नीकी, पोलाइट। हम जनरली नॉर्मल यूज करते हैं जो सिंपल कमांड्स में एग्जीक्यूट होता है। अगर आप हाइफन टी यूज नहीं करते हो तो वो नॉर्मल पे चलता है आपका, बट यू कैन स्पेसिफाई अग्रेसिव और इनसेन, यू कैन स्पेसिफाई पैरानोइड एज वेल। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस स्पीड से पैकेट्स भेजने हैं टारगेट के पास।
फायरवॉल लेवल पे ये सब चीजें कैप्चर होती हैं कि किस स्पीड से मतलब हमें ट्रैफिक ऑब्जर्व हो रहा है। मैम फॉर अगर आप एग्जांपल अगर आप इनसेन ट्राई करते हो सकता है फायरवॉल उसको एज ए डीडोस समझ ले या फिर सिंपल डोस अटैक समझ ले, या वो उसको फायरवॉल लेवल पे ही ब्लॉक कर देगा। ये भी चांसेस है हमारे पास। ओके, तो डिपेंड ठीक है। करता है कि फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर है, उसके ऊपर हम्म। भी काफी कुछ डिपेंड करता है हमारा। अगर फायरवॉल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है तो वो एनएमएफ को अलाउ ही नहीं करते ज्यादातर राइट। टाइम पे। तो अगर आप सिंपल विंडोज 7 की या विंडोज फायरवॉल ऑन करके, लाइक अपडेटेड विंडोज 7 हो या फिर 10 हो, और आप फायरवॉल ऑन है आपकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पे, तो एनएमएफ पे आपको कुछ नहीं दिखाता, सिंपल पोर्ट फिल्टर्ड दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे विंडो 10 एक्टिव स्टार्ट करता हूँ अपनी, फिर इसको स्कैन करते हैं बाद में, मुझे सिंपल 1000 फिल्टर्ड पोर्ट्स दिखाएगा, दैट्स ऑल, क्योंकि फायरवॉल ने अलाउ ही नहीं किया एनएमएफ फायरवॉल ने को। अलाउड नहीं। ठीक है। तो डिपेंड करता है फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, वो भी आता है यहाँ पे। ठीक, तो हम हाइफन स्मॉल पी यूज कर सकते हैं यूडीपी के पोर्ट्स और टीसीपी के पोर्ट्स अलग अलग स्पेसिफाई करने के लिए भी, कि यूडीपी का पोर्ट नंबर 22 स्कैन करना है, टीसीपी का पोर्ट नंबर 50 स्कैन करना है, वो सब पार्ट आता है यहाँ पे। हाइफन स्मॉल पी, कैपिटल यू, कोलन, पोर्ट नंबर, कैपिटल टी, कोलन, पोर्ट नंबर, तो फिर आपका आईपी एड्रेस। ओके, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एसटी। एसटी होता है हमारा कनेक्ट स्कैन। हमने जब इसके पैकेट्स कैप्चर किए थे एनमैप के वायर शार्क पे, तो हमने लास्ट में एक रीसेट भेजा था, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एस टी यूज करता हूँ, तो एस टी में वो रीसेट की जगह है आपका जो लास्ट चाहता है सिंक्रोनाइजेशन, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था थ्री वे हैंडशेक पे, यस, जब वहां से सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आया, तो सिंपल कमांड में वो आपको यहाँ पे रीसेट भेजता है। बट अगर आप यूज कर रहे हो प्रॉपर कंप्लीट स्कैन, वो यहाँ पे भेजेगा एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के साथ पैकेट्स, ठीक है, कि कनेक्शन पूरा प्रॉपर स्टैब्लिश करना है मुझे। उसके लिए हम यूज करते हैं एस टी, कनेक्ट स्कैन बोलते हैं उसको। मेरी मशीन हैंग हो गई गाइस, या कैन चलो बच गई, कम से कम मरी नहीं है, और ना मर जाती है मेरी मशीन अक्सर, बिकॉज अभी 4 वीएम्स एक्टिव है मेरी। तो मुझे लगता है मेरी मशीन, जस्ट अ मिनट, मुझे विंडोज 10 बंद करनी पड़ेगी अपनी। बट फायरवॉल में होता वही है कि कैसे कॉन्फ़िगर करके रखिए, अगर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है तो वो एनएफ को अलाउ ही नहीं करता। ठीक, ओके। तो हम सिंपल 3 मशीन पे काम कर लेते हैं, वरना मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा बीच में ही। तो यस, तो हम हाइफन स्मॉल पी यूज करते हैं पोर्ट्स के लिए, और अगर मैं हाई यू और कोलन दे रहा हूँ, मतलब मैं यूडीपी पोर्ट स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे इन सब पे यूडीपी पोर्ट स्कैन करने हैं। आप सिंपल कह सकते हो कि मुझे सिंपल सारे के सारे यूडीपी पोर्ट ही स्कैन करने हैं, तो आप हाइफन स्मॉल एस कैपिटल यू यूज कर सकते हो, स्कैन यूडीपी पोर्ट्स फॉर दिस आईपी। ओके, इफ यू वांट टू स्कैन टीसीपी पोर्ट्स, वो बाय डिफॉल्ट टीसीपी पोर्ट्स ही स्कैन करता है, बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई, यू कैन यूज हाइफन स्मॉल एस कैपिटल टी, just to specify I ओके। want to scan TCP ports. इन द Okay, अबव कमांड this one. यू वाला, हाँ, जिसमें हम स्पेसिफाई मींस यूडीपी मोर देन वन पोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। Yes, you can try. ओके, लाइक आई नीड टू गिव अ स्पेस बिटवीन देम, राइट, ओनली। Yes. ओके। So you can specify range as well. आप रेंज भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने रेंज यहाँ भी पे दे दी थी। सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। आप सिंपल सिंपल हाइफन एस यू भी यूज कर सकते हो कि मुझे यूडीपी पोर्ट्स ही स्कैन करने हैं, हम्म। और फिर प्रॉपर रेंज दे दो हाइफन पी के साथ।
ठीक है, ठीक है। वो एक सिंपल कमांड रहती है, बट इफ यू वांट टू स्कैन बोथ एट द सेम टाइम तो आपको ये कमांड काम आती है। ओके, या देन वी हैव nmap-il list.txt। तो इसमें IL किस लिए होता है? IL हमारा स्पेसिफाई करता है कि मुझे एक पूरी लिस्ट है, उसके अंदर आईपी एड्रेसेस है, मुझे उन सबको स्कैन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक txt फाइल बनाता हूँ, इसमें मैं अपने मल्टीपल एड्रेसेस स्पेसिफाई कर देता हूँ और फिर यहाँ पे लिस्ट का नाम देता हूँ, ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मेरे एड्रेसेस है। हर लाइन पे एक एड्रेस होना चाहिए उसमें, नो नेटवर्क एड्रेस, नो CIDR नोटेशन, नथिंग, पे एड्रेसेस होने चाहिए उसमें। ठीक है, मैं यूज करूंगा -i to specify a list of IP addresses। ओके, तो हमें ये ट्राई करनी है या फिर सिंपल कंटिन्यू करें? Can we try, sir, practically? Yeah, we can try, not an issue. So I just have to create a Can txt you file. specify the path there where this file is there? Yeah, you have to specify the path. Okay. If it's in the same directory, you can specify the name. Okay. बट अगर डायरेक्टरी अलग है तो पूरा पाथ देना पड़ता है उस केस में हमेशा ही। नॉट ओनली फॉर nmap, वो हमेशा आपको पूरा पाथ देना पड़ता है अगर डिफरेंट डायरेक्टरी है तो। ठीक है, तो हम एक फाइल बना लेते हैं। gedit मेरा एक सिंपल एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर। मैं एक फाइल बना रहा हूँ list.txt, कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मेरा फर्स्ट टाइप था 2.2.2.129। ठीक है, सेकंड इज 130, सही है। तो कर दिया मैंने सेव एंड क्लोज। देन व्हाट्स माय कमांड? nmap -i कैपिटल L देन list.txt। जस्ट बिकॉज अभी सेम डायरेक्टरी में है ये, इन केस मैं डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ, इन केस मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे वो कमांड चलानी है तो मैं कैसे चलाऊंगा? nmap -i कैपिटल L ./list.txt। जस्ट बिकॉज मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, मैं डॉट डॉट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक डायरेक्टरी पीछे जाओ और ये फाइल पे आपको स्कैन चलाना पूरा। इफ यू प्रेस एंटर, आपका nmap कमांड एग्जीक्यूट होगा फॉर दोज IPs। हम इसका रिजल्ट देखेंगे बाद में, तब तक के लिए बाकी कमांड देख लेते हैं कोई और। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड -a, -A आपके मल्टीपल फ्लैग्स, फिर मल्टीपल टाइप ऑफ स्कैन एक साथ चलाता है। इसको हम सिंपल अग्रेसिव स्कैन बोलते हैं। ये आपके 4 टाइप के स्कैन्स एक साथ चलाता है। द फर्स्ट वन इज -o फॉर OS डिटेक्शन। मैंने ये कमांड्स लिखी है इनके अलग अलग भी। देन ये चलाता है -s कैपिटल C। स्मॉल एस कैपिटल C आपकी NSC की डिफॉल्ट स्क्रिप्ट चलाता है। nmap में आपके पास कुछ स्क्रिप्ट आते हैं पहले से लिखी दिखाई, उनको हम बोलते हैं nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। .nsc एक्सटेंशन होता है उनका। तो ये हमारा आउटपुट आया है उन कमांड के लिए जहाँ पे हमने लिस्ट स्पेसिफाई की थी। तो दिस इज माय फर्स्ट IP 2.129 and these are the ports। okay, and this is my result for 2.130 and these are the ports। Okay. so if I want to scan -a, मैं आपको nmap की स्क्रिप्ट बता रहा था। तो nmap की स्क्रिप्ट्स होती है, अगर मैं सिंपल अपने लोकेट कमांड के बारे में सुना होगा। इसके बारे में हमारे पास 2 कमांड्स होती हैं फाइल्स को ढूंढने के लिए। द फर्स्ट वन इज लोकेट एंड सेकंड वन इज फाइंड। सुना है इनके बारे में, दोनों के बारे में? नहीं। प्रीत, आर यू देयर? Yes, sir. आई एम आस्किंग, आपने लोकेट कमांड और फाइंड कमांड के बारे में सुना है? कभी यूज की हो पहले? No, sir. ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपकी जो लोकेट कमांड है वो एक डेटाबेस मेंटेन करता है फाइल्स की डायरेक्टरीज के साथ। इफ आई यूज लोकेट NSE
वो डाटाबेस में सर्च करेगा, तो जितने भी NSE फाइल्स या फिर जिस फाइल में NSE नाम आ रहा है उस सबके रिजल्ट्स मुझे देगा। डाटाबेस अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल अपडेट डीबी कमांड चलाते हैं। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आपको डाटाबेस अपडेट करना होता है खुद से। अगर आप खुद से अपडेट नहीं करते हो तो हर रिस्टार्ट के बाद अपडेट होगा हमेशा अपने आप। ओके, बट इफ यू वांट टू अपडेट योरसेल्फ तो आप एक कमांड यूज कर सकते हो, अपडेट डीबी। ये तो हो गई लोकेट की बात। देन वी हैव फाइंड कमांड। फाइंड कमांड में आपको नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है हाइफन हाइफन नेम के साथ। ओके, या फिर आप सिंपल हेल्प जब टाइप करते हो तो आपको दिखाता है ये हाइफन सी न्यू, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। तो द पहला वन जो हमारा यूज करते हैं हम नाम के लिए, वेयर इट इज द नेम ऑप्शन। इसमें आपको फाइल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है एक ऑप्शन के साथ। तो वेयर इज द हाइफन नेम ऑप्शन, तो आपको दिख रहा है कहीं पे? ये भी नहीं है। होल नेम पैटर्न, ये डिफरेंट चीज है। लेट्स ट्राई दिस। नहीं, हाइफन हाइफन नेम यूज ही नहीं करता ये अब। ये भी यूज नहीं करता। तो आप इस बारे में पढ़ लेना, देख लेना कौन सी कमांड यूज करता है। बाकी आप लोकेट यूज कर सकते हो सिंपल कोई फाइल को लोकेट करने के लिए। ठीक है, लोकेट और फाइल का नाम। अब मुझे सर्च करना है NSE स्क्रिप्ट के बारे में। तो इनकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है हमेशा, इफ यू गो इनटू CD यूजर शेयर nmap, अभी आप फाइल देख सकते हो मल्टीपल्स। अब एक फोल्डर है स्क्रिप्ट्स के नाम से। इफ आई गो इनटू दिस डायरेक्टरी स्क्रिप्ट्स में और ls करते हो, ये स्क्रिप्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर मैं आपको इसकी कैटेगरीज दिखाऊं तो भी नेट नहीं चल रहा, फिर उस पर मेरे क्रोम पे, सॉरी फायरफॉक्स पे, वो अभी स्टार्ट मांगेगा। आप एक बार इस पे गूगल गूगल कर लेना, nmap.org का डिफॉल्ट पेज जिसपे आपको कैटेगरीज मिलती है स्क्रिप्ट्स की। आप कैटेगरी का नाम दे सकते हो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग एवरी स्क्रिप्ट इंडिविजुअली। ठीक है, इसमें से जो बेसिकली हम यूज करते हैं उनमें से कुछ है, लाइक हम वर्ल यूज करते हैं। जो भी स्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज हुई है वो उन सबको यूज करता है और ट्राई करता है कोई वल्नरेबिलिटी मिली है नहीं मिली मुझे। ठीक है, तो दीज आर nmap स्क्रिप्ट्स, यू कैन से nmap स्क्रिप्टिंग इंजन का पार्ट है। डॉट NSC एक्सटेंशन है nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। ओके, या तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं बता रहा था कि हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी आपकी nmap की एक कैटेगरी है डिफॉल्ट। उस कैटेगरी में जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता है और वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करता है। तो ये भी एग्रेसिव स्कैन के अंदर ही चलता है, अपने आप ऑटोमेटिक चलता है ये। उसके बाद वो बताता है ट्रेस रूट, जो नंबर ऑफ हॉप्स बीच में आए हैं, लाइक ट्रेस रूट कमांड मुझे पता होगा आप सबको। वो ट्रेस रूट कमांड भी एग्जीक्यूट करता है एग्रेसिव स्कैन के अंदर। फिर आता है हमारा हाइफन एस और स्मॉल बी। हाइफन एस स्मॉल बी यूज होता है वर्जन डिटेक्शन के लिए, कि आपकी जो सर्विसेज है यहाँ पे, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अबाउट, ऊपर चलते हैं थोड़ा। या वो जो सर्विसेज चल रही है यहाँ पे FTP, उसका वर्जन क्या है। हो सकता है वो कोई वल्नरेबल सर्विस का वर्जन यूज कर रही हो जिसका अपडेट आ चुका है लेकिन उसने अभी तक अपडेट नहीं किया, तो वो भी एक फ्लो ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका वर्जन भी स्कैन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल बी। तो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग 3 or 4 डिफरेंट ऑप्शंस यू कैन सिंपली स्पेसिफाई कैपिटल A फॉर एन अग्रेसिव स्कैन। एक टाइम काफी ले लेता है, तो हम अलग अलग भी ट्राई कर सकते हैं। हाइफन कैपिटल O फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल C फॉर स्क्रिप्टिंग इंजन्स, द डिफॉल्ट कैटेगरी को एग्जीक्यूट करता है पूरा पूरा वो। देन हाइफन स्मॉल एस कैपिटल V फॉर वर्जन डिटेक्शन। ओके, तो एनी डाउट यहाँ तक? No doubts, very clear. No doubts. Yeah.
ओके तो ये सब तो हो गया हमारा nmap पे। अगर हम IPv4 एड्रेस को स्कैन कर रहे हैं उसके लिए, इनकेस हमारे पास IPv4 एड्रेस है ही नहीं, लाइक IPv4 लोकेट ही नहीं हुआ, सिर्फ IPv6 है हमारे पास, तो हम -6 यूज करते हैं IPv6 एड्रेस अलोकेट या फिर IPv6 एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, we use -c for specifying IPv6 address. Okay, then we have something called -small s capital S. ये होता है सिंक स्कैन। तो एनमैप आपका डिफॉल्ट चलाता है, जहाँ पे हमारे पास सिंक पैकेट जाता है हमारी तरफ से, वहां से रिस्पॉन्स आता है, देन हम रीसेट पैकेट भेजते हैं, जो हमने सिंपल देखा था अभी वायर शार्क में भी। वो होता है सिंपल -small s capital S, द सिंक स्कैन, टेल्थ स्कैन, पिंग स्कैन, व्हाटएवर यू से, के मल्टीपल नाम्स है। और जो हम जनरली यूज करते हैं वो है सिंक स्कैन और स्टेल्थ स्कैन। ठीक है, फिर आता है हमारा nmap स्मॉल एस कैपिटल ए। इसमें आपके जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स। ये ट्राई कर लेते हैं, इसका आउटपुट देखेंगे, वो समझते हैं वो कैसे काम करता है। तो लेट मी क्लियर द प्रीवियस रिजल्ट्स। ठीक है, टीडी मैं मेन डायरेक्टरी में आ रहा हूँ एक बार के लिए। तो हमारा आउटपुट था, तो आउटपुट में हमारा टारगेट था nmap हमें चलाना एक्नॉलेजमेंट के लिए, लाइक एसी के फ्लैग भेजना है हमें। So this will be our target 130. Let's start the Wireshark again. Okay. So let me close this. Let me close this and this as well. So चल भी गया नहीं। तो मेरी कमांड क्या थी? nmap -small s capital A for acknowledgement flags. ठीक है, and this is my target. Let's run this command. मेरा Wireshark चल रहा है बैकग्राउंड में। You see, all 1000 scanned ports are unfiltered. इसने मुझे क्या बताया? सिंपल, यहाँ पे कोई फायरवॉल नहीं लगी है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे इसका आउटपुट एनालाइज करूँ, जो वायरशार्क का मेरा आउटपुट है, इसमें पोर्ट्स रैंडम है। तो देखो 25 पोर्ट नंबर एक्टिव था पहले। तो लेट्स ओपन अ न्यू टैब एंड सिंपली आ लेते हैं एक बार, ताकि मैं ओपन पोर्ट्स बताऊं कि कौन सा पोर्ट ओपन है। हम सिर्फ उसी का आउटपुट एनालाइज करेंगे फायरफॉक्स में वायरशार्क पे। ठीक है, तो मैं ये दोबारा चला रहा हूँ -r के साथ। -r क्यों यूज करते हैं हम? ताकि वो रैंडम पोर्ट्स ना ले, एक सीरीज में चले। ओके, so let's start again. तो ये चल रहा है मेरा, और इसका रिजल्ट आ चुका है पहले। तो इसका रिजल्ट, इसके पैकेट्स यहाँ पे तो है नहीं, वायरशार्क पे सिर्फ इसके पैकेट्स हैं। ये हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं ओपन पोर्ट्स कौन सा था सबसे पहले। 21, इसी को पकड़ते हैं। तो वेयर इज 21? ये रहा। इस पोर्ट से रिक्वेस्ट गई 21 पे, फिर 21 से रिस्पॉन्स आया रीसेट का। ठीक है, अब बाकी पोर्ट देखो अगर तुम, तो पोर्ट नंबर 20 पकड़ते हैं। 20 पे भी एक्नॉलेजमेंट गई और रिस्पॉन्स आया। इसलिए पता कैसे लगा कि वहाँ पे फायरवॉल लग रही है नहीं लग रही है, लाइक फायरवॉल चल रही है नहीं चल रही है। एनी आइडिया? चलो ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क आज का। इसके बहाने तुम कमांड्स ट्राई कर लेना
और ये ट्राई करना कि एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जो एक्नॉलेजमेंट हमारी कमांड है -s कैपिटल A वाली, ये काम कैसे करती है। जस्ट ट्राई टू एनालाइज द पैकेट्स इन फायरवॉल इन वायरशार्क, तो पता लगा कि कैसे काम करता है। और गूगल तुम्हारा बेस्ट बड़ी रहता है इन केस ऑफ हैकिंग एंड ऑल इस पार्ट में, ठीक है। तो गूगल भी कर सकते हो तुम, बट कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि इसने काम कैसे किया है, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए हाईलाइट, ओके। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का। फिर आता है हमारे पास nmap -scan flags। -scan flags एक ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं खुद के फ्लैग्स स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि पैकेट्स में कौन से फ्लैग्स होने चाहिए। मैं ट्राई कर सकता हूँ नॉट scan flags, syn for sync flag, ack for acknowledgement flag, fin for finish flag। बाकी फ्लैग्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो, नॉट एन इशू, बट ये 3 हम कॉमनली यूज करते हैं, ओके, with this -scan flags option। Then we have something called -P small n। -P small n यूज होता है डोंट पिंग के लिए, लाइक एको रिक्वेस्ट नहीं भेजनी उसके पास हमें, तो ये करेगा क्या, एनी आइडिया। लेवल 56, ओके। तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये होमवर्क तक वाला पार्ट हम यहाँ से आगे दोबारा कल कंटिन्यू करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। ठीक है। हम ये सब कल देखेंगे। Actually, it was little too many information. हाँ, आज के लिए काफी हो गया क्योंकि एक्चुअली टाइम भी हो चुका है, मुझे एक और क्लास लेनी है अभी इसके बाद ही 12 बजे, ठीक तो है। ठीक है। वरना फिर वो वेट करेंगे मेरा। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि -A जो AC के फ्लैग हम भेजते हैं वो कमांड काम कैसे करती है, ओके। ओके। तो दैट्स ऑल। कल के लिए लिंक हमारा सेम रहेगा जो आज है, आगे वाली ओके। क्लासेस के लिए हम सेम लिंक यूज करेंगे। इन केस कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, Okay. ओके। ओके। टुमारो 10 AM, राइट? या टुमारो 10 AM। ओके। या तो एक बार इन कमांड्स को ट्राई कर लेना। ये जो आपके फ्लैग्स हैं इनके बारे में पढ़ लेना, ये फ्लैग्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। मैंने सिंपल डेफिनेशंस लिखे हैं यहाँ पे, चाहे तो ये पढ़ लेना। कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है हमारा, वो याद कर लेना, ओके। और ये कमांड्स जरूर ट्राई कर लेना, Sure. बिकॉज नेटवर्क स्कैनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हैकिंग। तो आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। कोई क्वेरी हो मेरे लिए, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो वो आप कल पूछना, बिकॉज आज हम काफी लेट है। ठीक है। सो आप क्वेरीज नोट कर लेना, कल के लिए जितने भी है हम Sure. कल उनका आंसर करेंगे, ठीक है। You'll give the notes. या आई शेयर द नोट्स। तो मैं आपको अभी दूं या फिर चलो अभी दे देता हूँ मैं आपको। तो Okay. ये लिंक किसके लिए बनाया था मैंने, हाँ, ये एक PDF फाइल है, आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। nmap की कुकबुक है ये। तो nmap की जितनी भी कमांड्स आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। Yes, sir. और नोट्स के लिए एक और लिंक देता हूँ मैं आपको। अब ये चलेगा नहीं, आई हैव टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड स्टार्ट दिस मीटिंग। तो 1 मिनट के लिए रुकना। Okay. मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, नोट्स अभी जो दूंगा मैं आपको, वो अपलोड कर देता हूँ मैं। 1 मिनट। आपको कुक बुक का आई थिंक वो मिल चुका होगा लिंक, राइट। हाँ। मेरा सिस्टम हैंग हो गया। मैं एक काम करता हूँ, आपके काउंसलर के थ्रू आपको मेल करवा देता हूँ फिर मैं, या तो फॉर दिस वो लिंक, चलेगा। टेक्स्ट फाइल, फॉर द नोट्स, फॉर द नोट्स। नोट्स, हाँ हाँ फॉर द हाँ। नोट्स, ठीक है। ठीक ठीक है। है, चलेगा। हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सुप्रीत, ओके मोनिका, हैव अ गुड डे। या सेम टू यू। बाय बाय। बाय बाय। Okay. Bye, sir. बाय।